just start. We have few more people joining in, but before that, we'll just start. I'll introduce Atul. So, my name is Rima, and I'm from Jigo's marketing team. And the purpose of the webinar sessions that we do is to give back to the community that we have, to give back to the restaurant owners, bring in industry experts, give our restaurant owners a chance to learn from there, a chance to get a chance for them to speak to industry experts and their experiences. Today we have Mr. Atul Sharma with us, who's going to take us and explain the magics of Instagram. He has his own Instagram account called Restaurant Case Study. He will talk about that in detail a little more in the later part of the webinar. He has over 8.7 followers, if I'm not wrong. Yes. Yes. Yeah. So he has worked with numerous restaurants. He's helped them with their marketing strategy, and now he's going to take over and talk about how you can do the same. Yes, Mr. Kishanari-san. Give me a second. Yes, guys, I think will be much better now. Less of echo. Okay. It's better. It's better. It's better. Yeah. Okay. So guys, before we start, just one request. आप सब अपने mic mute रखिएगा. Otherwise, बीच में sound आने लगेगा. आपको अगर कोई भी questions or any questions that you guys have, you can put in the chat box below, and we'll take a note of each and every questions, and we'll make sure कि हम हर question का answer करें at the end of the webinar. और अगर बीच में भी कोई है, तो we'll take that questions up. No worries. That's there. And the second thing, that's it. Let's start. Atul, over to you. Thank you. Thank you for a wonderful introduction. Hi guys. So I hope everybody is getting my voice. Am I audible? Just write yes in the comments if I'm audible. There's no echo. Right. So थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ. Right, my name is Atul. By profession, I am a digital marketer and now becoming author. और मैं book भी लिखता हूँ, which like title है अब कोई restaurant बंद नहीं होगा. You can see on the T-shirt also. This is the book. ठीक है, तो basically I came to restaurant industry the last 2021 after lockdown only. I got some clients, तो उनके साथ कुछ काम किया, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स के समझा, तो एक में और इन सब चीजों करते नंबर सामने आया 60% रेस्टोरेंट शट डाउन इन द फर्स्ट ईयर, राइट. तो ऐसी दिस इंडस्ट्री फाइंड की भाई कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या गलतियां हो रही है, और वो 20% रेस्टोरेंट सक्सेसफुल है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, अडैप्ट इनटू द मॉडल. तो उस तरह की सारी केस स्टडी के अराउंड ही मैंने ये बुक भी लिखी और कुछ कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, और ये वेबिनार भी आज उसी का पार्ट है. होप आई विल ट्राई टू डू एज मच वैल्यू आई कैन टू ऑल यू पीपल, राइट. तो स्टार्ट करें. इफ एवरीबॉडी इज रेडी, जस्ट राइट यस इन द कमेंट्स. Yes, let's start. I'm excited, guys. Let's keep this two-way. Let's keep the chat flow flowing. It's very motivational and exciting to see so many people in the chat box. So let's keep it exciting, keep it two-way. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली पहला क्वेश्चन हम कि मार्केटिंग करनी क्यों है, राइट. व्हाई मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट. मार्केटिंग सिंपल आंसर है कि भाई कस्टमर चाहिए हमें, सेल्स चाहिए हमें, राइट. यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द कस्टमर माइंड. तो ये सब तभी मार्केटिंग स्टडी बिजनेस आवर सेशन अबाउट इंस्टाग्राम मार्केटिंग, बट उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग, बिकॉज इंस्टाग्राम तो एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है. इट्स द प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना मैसेज कन्वे करते हो अपने टारगेट कस्टमर को, राइट. तो पहले हम समझते हैं मार्केटिंग. टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग, उसके लिए तो अंडरस्टैंड
राइट, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनका प्लेजर पॉइंट्स क्या है, विच स्पेंड मनी, क्यों, कब पैसा खर्च करते हैं, कहाँ पैसा खर्च करते हैं, आपको आपकी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, और वो कैसे यूएसपी ऑफ योर रेस्टोरेंट, ऑल दिस थिंग कम्स अंडर द मार्केटिंग अम्ब्रेला, राइट? आई होप आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर, राइट? तो क्या आपके रेस्टोरेंट को मार्केटिंग की जरूरत है? देखो, स्पेंडिंग मनी इन द मार्केट, बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, रोज बाहर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मंगा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि आपके पास शायद वो कस्टमर नहीं आ रहा या वो पैसा नहीं आ रहा, ठीक है? तो उसके दो कारण हो सकते हैं। अब वो दो कारण क्या होंगे? या तो उनको आपके रेस्टोरेंट के बारे में पता नहीं है, राइट? दे डोंट नो अबाउट योर रेस्टोरेंट कि भाई आप क्या बनाते हो। आप मान लो कि आप बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो, बट आप जब तक बताओगे नहीं तो उनको पता कैसे लगेगा भाई? मतलब यू हैव टू टेल देम, राइट? इतना सारा ट्रैफिक है डिफरेंट जगह पे, और सबसे डिफिकल्ट चीज है कंज्यूमर अटेंशन को ग्रैब करना, और वो किस तरह से करना, ये सब चीजें हम आज इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे, Atul, ठीक है? sorry to interrupt, but there are a lot of people saying that your voice is not clear. I'm not sure if it's them or if it's the internet. Let me see if it just make a point. Let me know if it's clear now. Guys, is the voice clear now? You can just put a thumbs up on in the chat box. No, so there's 2-3 people saying that they're not able to listen. Let me see. Let me change the microphone. Let me know if I'm clear now. Yes, looks clear now. Right. Chalo, now let's start. तो मैंने माइक चेंज कर दिया अभी, मे बी देयर इज सम इशू। Perfect. राइट, तो हमारा पॉइंट था व्हाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ द थिंग इज, तो लोग, जब तक आप अपने लोगों को बताओगे नहीं कि भाई आप कितनी अच्छी कॉफी बनाते हो, आपका कैफे है, तब तक उनको पता कैसे लगेगा? मैं तो हमेशा कहता हूँ रोज आपको कम से कम 200 लोगों को अपने रेस्टोरेंट के बारे में जरूर बताना चाहिए। महीने में हो जाएंगे 6000 लोग, उसके 2-3% लोग ही कन्वर्ट होंगे, और वो 2-3% मान लो 150-200 लोग होते हैं, राइट? तो इतने ज्यादा लोगों को बता सको तो बताओ, बट बताना है विद अ क्लियर मैसेज। और ये गलती बहुत सारे रेस्टोरेंट करते हैं, देयर इज नो मैसेज। मतलब जब वो एड्स रन करते हैं, मैं देखता हूँ कि भैया कुछ है ही नहीं उनके, दे आर नॉट कन्वेइंग दैट मैसेज। एक चीज दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट, कुछ एड्स का एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। Now just look at these ads. अतुल आपका स्क्रीन भाई नहीं हो रहा है. I'm sharing the screen. Okay. Just see these ads. ये कुछ एड्स मैंने आज ही इंटरनेट से उठाई, जहां पे लोग दे आर रनिंग दीज एड्स। कोई क्लियर मैसेज नहीं है, और आइदर देयर आर टू मेनी मैसेजेस। तो यहाँ पे कस्टमर को आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। आप इस तरह की एड्स रन करोगे तो इट्स लाइक बर्निंग योर मनी, तो आप अपना पैसा बर्न कर रहे हो, राइट? तो इस तरह की एड्स तो आपको बिल्कुल भी रन नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फॉर, क्लियर मैसेज होना चाहिए। जैसे डोमिनोज की एड देखो, डोमिनोज, वी नो दैट डोमिनोज बेसिकली इज नोन फॉर द फास्ट डिलीवरी। तो उसकी जितनी भी एड्स अगर आप देखोगे तो हर बार वो उसका क्लियर मैसेज होता है हर एड में कि एक्सपेक्ट डिलीवरी इन जस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। आपको भी आपके प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए, और फिर वो क्लियर मैसेज आपकी एड्स में दिखना चाहिए, राइट? Yeah, can you zoom in a bit? There are a lot of people asking if you can zoom. They want to see the ads of this.
I'm zooming it. Let me just set it down ना. मुझे क्योंकि माइक चेंज किया तो just give me a minute. Yeah, sure. विशाल कहाँ है? सर छोड़ दो। The series ads. Are they visible? Yes, perfectly. So अब जैसे ये एक रेस्टोरेंट है जिसने एलिफ ट्रीट के नाम से है, इसने बेसिकली क्या किया है, इसने बहुत सारे मैसेजेस अपने एक ही ऐड में डाल दिए। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी होती है इंस्टाग्राम पे। यू हैव, ये एक द डी पिज्जा करके एक है कोई, जस्ट मिनट, दिस वन, सी लंच 229, 185, डिनर 259। आपको क्या लगता है कस्टमर के पास इतना टाइम होता है कि वो रजिस्टर होती है? नहीं हो पाती भाई। इतनी वन मैसेज वन टाइम। अब दिस इज लाइक मैकडोनल्ड्स, मेरे फ्री फ्राइज, कंप्लीट रियल एस्टेट यूज करो एक मैसेज के लिए। हमको लगता है एक बैनर बना रहे हैं उसमें सब कुछ डाल दें, उस तरह से आपकी एड कभी रजिस्टर नहीं होगी, आपको कभी कन्वर्जन नहीं आएगा इंस्टाग्राम पे, आप कभी अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाओगे, तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। तो द थिंग इज दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप योर मैसेज क्लियर, वन एड वन मैसेज। तो जैसे कि आजकल बहुत सारे ये पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो जैसे आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंपेन देखोगे तो एक पूरा इतना बड़ा बिलबोर्ड होगा, उसके ऊपर एक मैसेज लिखा होता है, राइट। अब चाहे तो वो इतना बड़ा भर सकते हैं, बट क्यों करते हैं? क्योंकि वन एड वन मैसेज हमेशा रजिस्टर होता है। कभी भी अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे तो यू विल नोटिस कि ये चीज तभी रजिस्टर हो पाती है, राइट। तो आपको ये पहली गलती कभी नहीं करनी है कि बहुत सारे मैसेजेस एक ऐड में डाल देने हैं। गॉट इट? सो नाउ द थिंग इज, अब ये तो समझ आ गया हमें कि मार्केटिंग क्यों करनी है। अब नाउ द थिंग, अगर टॉपिक है कि व्हाई इंस्टाग्राम ओनली, इंस्टाग्राम पे ही हमें मार्केटिंग क्यों करनी है। लेट मी सी दिस। तो पहला पहला की कारण तो ये है कि द मैक्सिमम अटेंशन आज की डेट में कहां पे है? वी ऑल नो इंस्टाग्राम पे, राइट। वो काम इंस्टाग्राम ने कर दिया है। इंस्टाग्राम इज पुलिंग द कंज्यूमर अटेंशन। सबसे डिफिकल्ट थिंग है इज द कंज्यूमर अटेंशन, तो वो इंस्टाग्राम ला रहा है। आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पे पोजीशन करना है विद द राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो इंस्टाग्राम। और दूसरा कारण ये है कि इंस्टाग्राम एक विजुअल प्लेटफॉर्म है। जैसे कि फॉर मैं बहुत बार कहता हूं कि यू हैव टू कैप्चर 5 सेंसेस ऑफ द कस्टमर। आपके रेस्टोरेंट की एम्बियंस अच्छी है, ठीक है, आपके रेस्टोरेंट की म्यूजिक अच्छा चल रहा है, आपका जो सीटिंग एरिया है वो बहुत बढ़िया है, तो दीज आर द ऑल थिंग्स जब आप जिसको आप विजुअली टेल कर सकते हो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे, और किसी प्लेटफॉर्म पे उतने अच्छे तरीके से आप बता नहीं सकते हो, ना ही गूगल पे ना ही फेसबुक पे। तो इंस्टाग्राम का विजुअल प्लेटफॉर्म है, तो ये आपके रेस्टोरेंट के साथ टोटली रिलेट करता है अगर आप उसको प्रॉपरली यूज कर पाओ, राइट। गाइस कमेंट्स में लिखते रहना अगर मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको, नहीं तो आई विल एलैबोरेट मोर एंड मोर। जस्ट, और तीसरी चीज है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस, आप देखो, आपका कुछ भी प्रोडक्ट है, आपका कुछ भी रेस्टोरेंट है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के साथ मैं बात करता हूं, उनको लगता है कि सारे हमारे क्लाइंट है। नहीं होता ऐसा, हर कोई आपका क्लाइंट नहीं है। यू हैव टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, राइट। यू शुड नो कि आप जितना डिटेल में आपको पता होगा ना कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनकी एज क्या है, उनके क्या खाते हैं वो, कैसा, क्या उनका सैलरी है, इस तरह की डाटा भी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। मतलब आपको आपकी वाइफ के बारे में शायद उतना ना पता हो, बट आपकी टारगेट ऑडियंस के बारे में जरूर ज्यादा पता होना चाहिए। मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि
आपको डिटेल में जितना पता होगा कि आपके यहाँ पे कस्टमर किस तरह का आता है, तभी आप एक अच्छी एड्स बना पाओगे विद अ क्लियर मैसेज। अदरवाइज आपका मैसेज क्लियर नहीं बना पाओगे, आप यूएसपी डिफाइन नहीं कर पाओगे, राइट। अब एक बार आपने अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर दिया, नाउ द पॉइंट इज कि अब आपको, कुछ लोग तो गाइस आई एम मेकिंग पॉइंट, आप कमेंट्स में लिख दो। हाँ, तो नाउ द थिंग इज, एक बार आपने अपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर दिया, नाउ अदर थिंग इज यू हैव टू फाइंड योर यूएसपी, कि आपकी यूएसपी क्या है। अब यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ये जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक कस्टमर को आप इनफ रीजन नहीं दे रहे कि वो आपके पास क्यों आए, राइट। यूएसपी आई होप सबको पता होता है यूएसपी। शुड आई एलैबोरेट इस पे थोड़ा सा और ज्यादा बोलूं, या जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। Yes, yes, Atul, I think everyone knows what USP. We have a very smart audience, I guess. We know that everybody is smart. But the only thing is, ये स्मार्टनेस हम कई बार खो देते हैं जब हम इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करने जाते हैं। द थिंग, प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इट, कि आपके यूएसपी के अराउंड ही आपको आपकी एड्स और आपके प्रोडक्ट्स और आपके ऑफर्स क्रिएट करने होते हैं। एक बार आपने उस तरह की, हाँ, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, राइट। तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, अब अगर मैं बात करूं, लेट्स से इसको अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए, कि बारबेक्यू नेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। बारबेक्यू नेशन का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? इफ एनीबॉडी टेल्स इन कमेंट्स, कि आप लोग बताओ मुझे कमेंट्स में कि हाँ, अनलिमिटेड खाना, यस, और अनलिमिटेड बुफे तो है ही है वो, बट एक और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है उसका, जो आप, अगर कोई कमेंट्स में बता पाएगा। एवरीथिंग अंडर वन प्राइस, दैट इज नॉट यूएसपी, दैट काइंड ऑफ। हाँ, लाइव कुकिंग, लाइव जो उनके टेबल पे बारबेक्यू सीजन मिलते हैं, दैट इज देयर यूएसपी आल्सो, कि उनके यहाँ वो प्रोडक्ट बना ही, बारबेक्यू नेशन का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पे खड़ा हुआ था, कि जब एपिटाइजर्स आते थे टेबल पे तो वो ठंडे हो जाते थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का, और बारबेक्यू नेशन ही एक अकेला एक ऐसा रेस्टोरेंट है विच इज प्रॉफिटेबल, ऑलमोस्ट लाइक 200, मोर देन 200 रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सारे के सारे प्रॉफिटेबल है, राइट। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स, कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं, व्हाई दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स एंड व्हाई सम ऑफ द रेस्टोरेंट्स आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। तो क्या क्या वो गलतियां हम लोग कर जाते हैं, तो हमको ये चीजें समझनी पड़ेंगी पहले। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द कंपटीशन आल्सो। अगर वो कंपटीशन भी है हमारा, फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी ब्रांड अगर हमारा कंपटीशन भी है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम एंड वी हैव टू अडेप्ट इनटू आवर बिजनेस मॉडल, राइट। अगर हम अपने बिजनेस मॉडल को उस तरह से अडेप्ट कर लेंगे तो वी विल बी लाइक मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, और सेल्स भी अच्छी आएगी। बट वो सारे फैक्टर्स यही होते हैं, 5 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं बेसिकली: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, पोजीशन, पीपल। इन्हीं 5 P's के अराउंड जितने भी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट अगर आप देखोगे तो वो इन्हीं 5 P's के अराउंड खेल रहे हैं, राइट। तो अगर आपको अपने रेस्टोरेंट में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी इंप्लीमेंट करनी है तो ये 5 P's को ही आपको इंक्लूड करना है। आई होप आई मेक द 5 P's everybody can tell in the comments: price, product, place, people, position। आप कहाँ पे अपने प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप उसको किस प्राइस पे बेच रहे हो। कंपटीशन एनालिसिस करना चाहिए कि आपका प्राइस ज्यादा या कम। तो यस यस प्रमेश, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, पीपल, पोजीशन। आपकी लोकेशन अगर बैड है, बारबेक्यू नेशन का एग्जांपल लेता हूं बिकॉज आज एक ही उसमें बताता हूं। बारबेक्यू नेशन अपनी लोकेशन उसके ऑफ होती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट मुझसे पूछते हैं कि हमारी लोकेशन खराब है तो हम क्या करें। अब बारबेक्यू नेशन से ये चीज सीखने वाली है कि बारबेक्यू नेशन इज अ डेस्टिनेशन रेस्टोरेंट। वो एक डेस्टिनेशन रेस्टोरेंट, कस्टमर घर से प्लान बना के निकलता है कि मुझे आज
बुफे खाने जाना है, मुझे आज रेस्टोरेंट फैमिली के साथ पार्टी करनी है, कुछ भी करना है, तो वो चूज ही वो करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट ऐसी लोकेशन चूज करते हैं जो हैपनिंग पॉइंट पे है ही नहीं है, राइट? क्योंकि उनको पता है कि दे विल सेव सम मनी एट द रेंटल साइड एंड देन दैट अमाउंट विल बी स्पेंड ऑन द मार्केटिंग साइड, और वही पैसा वो मार्केटिंग में स्पेंड कर देते हैं टू ब्रिंग दैट कस्टमर, बिकॉज उनके कस्टमर डिफाइंड है, उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइंड है, उनके प्रोडक्ट्स डिफाइंड है, एंड दे कीप इनोवेटिंग, दे आर ऑलवेज ऑन द टोज की एवरी टाइम। अभी आज भी अगर आप जाके देखोगे, एवरी सीजन दे आर ऑन टू समथिंग, कि अभी समर सीजन आ गया तो मैंगो का कुछ कर दिया उन्होंने, राइट? दे हैव लॉन्च मैंगो। या एक चीज और दिखाता हूं अभी आपको मैं, जस्ट अ मिनट, यू विल फाइंड अमेजिंग इन दिस थिंग ना। सॉरी, आज मेरा थ्रॉट भी थोड़ा सा, ये बीच बीच में ना थोड़े से पॉजेज आते हैं मेरे, क्योंकि आई एम नॉट यूज टू दिस थिंग, वेबिनार्स एंड ऑल, तो आई होप नोबडी फील ऑफेंडेड, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है। No, no, we are very lucky to have you on board. To have tried to learn from your experience. I think our audience feels the same as well. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट रीमा। इसका मिनट, ये जो ओबीएस वाला सिस्टम है ना, लेट मी सी, इसको स्क्रीन कैप्चर ही कर देता हूँ। I'm sharing a screen. Is it visible? Yes, sir. Yeah. Just watch out these ads. अब ये बार्बिक्यू नेशन की कुछ एड्स देखो आप, 3 एड्स हैं, तीनों डिफरेंट है, प्रोडक्ट सेम है, राइट? उनका ऑफर्स भी सेम है ऑलमोस्ट, बट प्राइस फर्क है। अब प्राइस क्यों फर्क है? एक अनलिमिटेड ड्रिंक्स एंड बुफे मिल रहा है 1299 में, एक को 119 में, एक 999 में। अब ये तीनों डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस डिफरेंट होगी, इसकी पीछे स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट की होगी, इनका जो कस्टमर होगा जिनको ये एड्स शो हो रही होंगी, ये टोटली डिफरेंट होगी, राइट? तो ये आपको दिखाता है कि टारगेट ऑडियंस आपकी किस तरह से आपको वो उनके अराउंड प्रोडक्ट बनाना है, कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो आपने डिफाइन कर दी, उनको किस प्राइस पे वैल्यू प्रोपोजिशन क्या ऑफर देनी है, यहां से आप सीख सकते हो। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे, अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया पावर बुफे। अब ये पावर बुफे प्रोडक्ट अगर आप इनका प्राइस देखोगे 399, लंच में डिनर में भी 399। नाउ जस्ट इमेजिन, ये एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया इन्होंने। अब बार्बिक्यू नेशन में क्या होता है कि जब आप जाते हो तो उनके एपिटाइजर्स, दे आर लाइक ऑलवेज, यू गेट फुल विद एपिटाइजर्स, आपका स्टमक फुल हो जाता है, यू आर ऑलवेज कि भाई खिलाते जाते हैं वो आपको, और उनका मेन कोर्स और वो सब चीजें बचती हैं, बहुत सारी चीजें लोग खा ही नहीं पाते उतना, एपिटाइजर्स हमेशा ज्यादा खा पाते हैं। ये एक प्रोडक्ट बना दिया वहां पे, बिकॉज एक तो उनके पास मेन कोर्स बच रहा होगा, और दूसरा इसका प्राइस बहुत अग्रेसिव कर दिया टू बीट द कंपटीशन, 399। नाउ अब कस्टमर जब जाएगा वहां पे तो अपसेलिंग होगी। द मेन पॉइंट इज, जब आप वहां जाओगे और लोगों को देखोगे खाते हुए एपिटाइजर्स एंड पीपल आर हैविंग द गुड टाइम, तो उनकी से वो ज्यादातर 40 से 50% लोग तो अपग्रेड ही कर देंगे, नहीं यार मुझे आया तो मैं 399 देख के था, जस्ट अपग्रेड मी, आई वांट एपिटाइजर्स आल्सो। तो वो एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट बना देते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, अगर बहुत सारे रेस्टोरेंट ये सारी ऑफर्स को एक ही क्रिएटिव में कोलैबोरेट कर देते। इफ यू जस्ट नोटिस, 1 एड 1 मैसेज आपको हर जगह दिखेगा, बार्बिक्यू नेशन के भी। ये तो सिर्फ मैंने 5 एग्जांपल दिए, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप रिसर्च करोगे किस तरह से जो एड्स चल रही है इनकी या किसी भी रेस्टोरेंट की, तो आपको ये थ्योरी हर रेस्टोरेंट में दिखेगी, 1 एड 1 मैसेज, क्लियर। सबसे पहले तो आपको ये चीज दिमाग में डालनी है कि आपको रियल एस्टेट जो मिला है इंस्टाग्राम पे, जो ये स्क्रीन होती है सॉरी, ये जो स्क्रीन है, जितना भी एरिया हमें कई बार 1080 बाय 1080 1:1 जिसको हम बोलते हैं, और 9:16 जिसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, इसको पूरा फिल नहीं करना है हर चीज के साथ।
एक मैसेज को पकड़ो, यूएसपी डिफाइन करो, आपका प्रोडक्ट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, उसकी अराउंड फिर वो क्रिएटिव को डिजाइन करो, राइट? सो एम आई मेकिंग माय पॉइंट? आप कमेंट्स में बताओ अगर इफ एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट कि क्यों वन मैसेज वन एड इज इंपॉर्टेंट। अगली बार ये गलती आप लोग नहीं करोगे कि बहुत सारे मैसेजेस एक एड में डालोगे। अगर आपके बहुत सारे मैसेज है, ट्राई टू मेक डिफरेंट एड्स फॉर डिफरेंट ऑडियंस। हर एड डिफरेंट ऑडियंस के लिए होती है, ठीक है? तो ये तो समझ आ गया हमको कि मार्केटिंग क्यों करनी है, इंस्टाग्राम पे क्यों करनी है, और हमें क्या गलती नहीं करनी है। और दूसरी चीज, ये तो मैं सिर्फ अवेयरनेस की बता रहा हूं कि दो चीजें हुए हैं जो इस वेबिनार में हम कवर कर रहे हैं कि या तो आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, ये सारा टॉपिक हमने कवर किया है कि आपके पास कस्टमर आ नहीं रहा है क्योंकि दे आर नॉट अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट्स, अबाउट योर सर्विसेज, ठीक है? दूसरी चीज, दैट यू आर नॉट पोजिशनिंग योर ब्रांड। अब ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एड चलाई और कस्टमर उसी समय डिसाइड करता है कि चल भाई आज तो हम इस रेस्टोरेंट में खाने चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसकी जब नीड होगी कस्टमर तभी आएगा, राइट? इसको समझाने के लिए इस सामने स्क्रीन पे देखो, अगर आपको दिख रहा है। सो ये नीड है, वेन एवर यू आर थर्स्टी दिस इज अ नीड। तो कंपनीज लाइक कोल्ड ड्रिंक्स ये क्या करती हैं, अपने आप को ब्रांड पोजीशन करती हैं। ठंडा मतलब कोका कोला, एक टैगलाइन दी गई ताकि जब भी आपको ठंडा पीने की तरफ हो, ये सिर्फ इतने ही मैसेज पे क्रिस्प पूरा जोर डाल देते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब ठंडा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नीड ऑफ द कस्टमर। जब भी उसको प्यास लगेगी तो उसको कुछ ठंडा चाहिए, तब उसके दिमाग में एक नाम पॉपअप होना चाहिए जो कि है ठंडा मतलब कोका कोला। इसी तरह से आपको भी अपने ब्रांड को पोजीशन करना है। एक और ऐड दिखाता हूं आपको अभी, जस्ट अ मिनट। I'm sharing a new screen. Just a minute. Just watch this video. This is Rajiv. Rajiv loves fried chicken. But Rajiv thinks fried chicken only comes in bucket. Think outside the bucket, Rajiv. Think about the naked chicken taco with a shell made entirely of delicious, crispy fried chicken. It's first of its kind, Rajiv. Taco Bell's naked chicken taco. So this is the latest ad of the Taco Bell. अब Taco Bell में अगर आपने ध्यान से इस ऐड को देखा होगा, अगर आप नहीं देखा तो आप YouTube पे जाके देखना Taco Bell की इस ऐड को। दे आर टारगेटिंग विच ब्रांड, किस ब्रांड के अगेंस्ट अपने आप को वो पोजीशन कर रहे हैं? KFC, राइट? इन द फर्स्ट 5 सेकंड दे आर पोजीशनिंग देमसेल्फ अगेंस्ट KFC ओनली, कि भैया चिकन अच्छा जो है, फ्राइड चिकन है, वो सिर्फ बकेट में नहीं है। बकेट में तो वी ऑल नो हु सर्व्स, किसने इतना पैसा खर्च करके कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज किया और अपने आप को पोजीशन किया? यस, उत्कर्ष ने सही कहा, KFC। तो विद दिस काइंड ऑफ थिंग ब्रांड्स अपने आप को पोजीशन करते हैं। आपको भी आपके रेस्टोरेंट के जब आप यूएसपी ढूंढते हो तो आपका कंपटीशन एनालिसिस होना चाहिए कि आपका कंपटीशन कौन है। आपके पास अगर कस्टमर नहीं आ रहा तो वो कहां पे जा रहा है। अगर वो किसी पर्टिकुलर XYZ रेस्टोरेंट पे जा रहा है तो वहां पे वो क्या खाता है, किस तरह के प्रोडक्ट्स और ऐसी क्या ऑफर देता है, तो उनको अपनी एड्स में एड्रेस करना है, आपके क्रिएटिव में एड्रेस करना है। जिस तरह से ये टैको बेल कर रहा है, टैको बेल इज ट्राइंग टू स्टील द कस्टमर ऑफ द KFC, जो KFC ने ऑडियंस बिल्ड किया इतनी देर से। ताकि अब क्या होगा, KFC का ऑडियंस कौन है? यूथ है, यंग पीपल है, 18 to 25-30 years old पीपल। तो ये लोग जब प्लान बनाते हैं कि चल भाई KFC चलते हैं,
तो टैको बेल की स्ट्रेटेजी ये है कि जब भी उनका माइंड में केएफसी या उनका कोई भी ग्रुप में केएफसी का प्लान बने, तो उनके माइंड में एक उनका ब्रांड पॉपअप हो, टैको बेल, कि टैको बेल में भी समथिंग रिलेटेड टू फ्राइड चिकन इज अवेलेबल। एम आई मेकिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जस्ट राइट इन द कमेंट्स। तो आपको आपके कंपटीशन, यस, तो आपको आपके कंपटीशन एनालाइज करके आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके कंपटीशन का प्रोडक्ट क्या है, और कस्टमर क्यों आपके पास आएगा। कस्टमर तो घर से निकल ही रहा है पैसा खर्च करने के लिए, राइट? आपको कस्टमर को अगर अपने पास बुलाना है तो आपको बहुत सारी चीजों को एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। यूएसपी क्या है आपके रेस्टोरेंट की, आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आप कौन से प्रोडक्ट्स दे रहे हो, ये सब एनालाइज करना पड़ेगा आपको। सॉरी, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये सब तो हो गया, अब एड क्या बनानी है, कंटेंट कैसे बनाना है। यस, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन होगा कि ये तो हो गया, यूएसपी भी डिफाइन कर दिया हमने, हमारा प्रोडक्ट भी निकाल लिया हमने, हमने हमारे टारगेट ऑडियंस को भी डिफाइन कर दिया, अब वो प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। तो लेट मी शो यू अ स्क्रीन अगेन। ये देखो, इस तरह से आपको, इज माय स्क्रीन विजिबल? जस्ट लेट मी नो। हाँ, Yes, sir, we can see us. तो जिस तरह से बारबेक्यू नेशन का एग्जांपल अभी दे रहे थे हम, तो बारबेक्यू नेशन का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। यू हैव टू डिफाइन द एज, कि आपके कस्टमर की एज क्या है, मेल है, फीमेल है, 26, 45, जितना आप उसको डिफाइन कर सकते हो एज वाइज पहले तो। उसके बाद उनका बिहेवियर क्या है, जिस तरह से बारबेक्यू नेशन का बिहेवियर क्या होता है, फूडीज लोग जाते हैं, नॉन वेज फूड लवर्स जाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल जाते हैं, जो पार्टी जिनको करनी होती है, जो फैमिली के लिए जाते हैं, फैमिली आउटिंग, सोशल गैदरिंग्स लाइक किटी पार्टी, ये लोग जाते हैं, बर्थडे पार्टी जिनको करना है वो लोग जाते हैं, जिनको बियर पीना है, जैसे मैंने बियर वाली अल्कोहलिक वाली आपको ऐड दिखाई हुई थोड़ी देर पहले, तो जिनको वहां जाना है वो जाते हैं, और या फिर जिनको डील चाहिए। तो इसीलिए बारबेक्यू नेशन बहुत सारी डील्स है, पावर बुफे काइंड ऑफ प्रोडक्ट निकालता है जहां पे अग्रेसिव प्राइस पोजिशनिंग करता है, राइट? तो वो उस तरह की ऑडियंस के लिए वो क्रिएटिव बनाता है। अब जैसे कि पूछा था मैंने कि यूएसपी क्या है, अनलिमिटेड बुफे, वाइड वैरायटी ऑफ क्यूजीन, इंटरेक्टिव डाइनिंग एक्सपीरियंस, लाइव ग्रिल एक्सपीरियंस, वार्म, ये सब चीजों को डिफाइन करना होता है आपको आपके। तो आपको भी इस तरह से चार्ट बनाना है, आपको आपके टारगेट कस्टमर को एज वाइज सेक्टर करना है, उसके बाद बिहेवियर उसका क्या है, इस तरह से करना है। फिर आपके यूएसपी क्या है, आपकी यूएसपी एम्बियंस हो सकती है, आपकी यूएसपी आपका कुछ डिशेज हो सकती है, पिज्जा हो सकता है, 0 डिग्री जैसे करता है, 0 डिग्री एक कैफे है, राइट? तो 0 डिग्री का यूएसपी क्या है, उनकी प्रेजेंटेशन, फूड की प्रेजेंटेशन, लार्जर देन लाइफ वो दिखाते हैं अपने फूड को। अब खाना तो वही है, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका उनका चेंज हो गया, तो उनकी यूएसपी है। तो वो इस तरह से आपको आपके रेस्टोरेंट या आपके कैफे के पिन पॉइंट्स मेंशन करने हैं, और फिर आपको वो मैच करना है कि ये वाला कोई भी, अगर इफ देयर इज अ 18 to 25 या यू आर टारगेटिंग द फर्स्ट एड, आप कोई एड बनाने वाले हो, तो उसमें कौन कौन से लोग डिफाइन होंगे, फूडीज को क्या चाहिए, इसमें फैमिली आउटिंग है कि नहीं है, तो इस तरह से बर्थडे पार्टी जो करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप, और फिर उसको आप अपने यूएसपी के साथ, कि वो यूएसपी कौन सी जा रही है, उसको मैच करोगे। अगर आप सबको चाहिए होगा तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसका एक पूरा पीडीएफ भी है मेरे पास जो मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें आप अपना डिफाइन कर सकते हो। वंस यू आर डन विद दिस थिंग, कि आपने एज डिफाइन कर दिया, आपने बिहेवियर डिफाइन कर दिया, आपने अपनी यूएसपी डिफाइन कर दी, नाउ इज द टाइम टू क्रिएट प्रोडक्ट्स। जैसे कि बारबेक्यू नेशन ने किया कि कोई भी एड एक रन की, वो एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस के लिए उसने रन की। ये नहीं कि ये एड वो सबको दिखा रहा है, अगर वो 200 रुपए पर डे भी स्पेंड कर रहा होगा, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग ही इज स्पेंडिंग 200 ओनली, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। अगर आपका 200 रुपीज आपने स्पेंड करना है, तो दैट 200 रुपीज शुड बी स्पेंड फॉर द पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस ओनली, कि जिनको बियर में इंटरेस्ट है, राइट? नहीं तो आपको लाइक्स या व्यूज तो मिल जाएंगे आपकी वीडियोस के ऊपर या जो भी आपका कंटेंट होगा, बट कन्वर्जन नहीं आएगा।
कन्वर्जन तभी आएगा जब आपने क्लियरली डिफाइन किया होगा आपका प्रोडक्ट कौन सी टारगेट ऑडियंस के लिए है। दूसरी चीज, एक चीज और है जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या कैफे गलती करते हैं, फूड ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, राइट। फूड ब्लॉगर्स को जब हम बुलाते हैं तो हम उनकी स्ट्रेंथ को यूज ही नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि हम उनको पावर देते हैं कि भैया आप बनाओ कंटेंट, आप जो भी बनाओगे जस्ट लेट और पोस्ट कर दो। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। यू हैव टू यूज देयर पावर। आप कैमरा कॉन्शियस हो सकते हो, राइट। आप कैमरा के ऊपर उतने फ्रेंडली नहीं होगे, बट आपके यहाँ पे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स होंगे जो जिनको कंटेंट चाहिए, दे आर गुड स्टोरी टेलर्स, दे कुड बी गुड, बट उनको आपको स्क्रिप्ट आप दोगे कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा यूएसपी है, ये इस तरह का ऑडियंस है और इसके लिए मुझे इस तरह का कंटेंट बनाना है। नाउ बी अ फेस ऑफ माय ब्रांड और बनाओ वीडियोस, बनाओ उस तरह का उस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो स्क्रिप्ट आपको देनी है, आपको एक, इसको हम बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी। जितना मैक्सिमम यूजीसी आप बनवा सकते हो, फूड ब्लॉगर्स को एवरी वीक, वंस इन अ वीक इनवाइट करो अपने यहाँ पे, एक या दो को वंस इन मतलब एक टाइम पे। ये नहीं कि बहुत सारे इकट्ठे आते हैं, ये बहुत सारे गलती करते हैं बिकॉज उस समय क्या होता है, डिफरेंट जोन हो जाता है, वो कंटेंट क्रिएशन हो ही नहीं पाती है। अगर आपको एक अच्छा कंटेंट बनवाना है तो आप एक या दो फूड ब्लॉगर्स को बुलाओगे, उनको आप स्क्रिप्ट दोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरा पिज्जा कैफे है, इसमें एम्बियंस को दिखाओ, एम्बियंस के साथ कुछ अगर पुल फैक्टर है वो दिखाओ, प्लस अगर कुछ आपको हुक चाहिए, हर वीडियो या हर एड में आपका हुक होना ही चाहिए। हुक आप अगर सब समझते हो कि हुक क्या होता है, जब हम फिशिंग करने जाते हैं तो वी ऑल नीड हुक, तभी मछली फंसती है, कस्टमर भी तभी फंसेगा, राइट। तो आपको आपकी हेड में हुक डालने पड़ते हैं। जैसे 0 डिग्री ने किया, 0 डिग्री क्या करता है, 0 डिग्री का हुक क्या होता था एड्स में, 0 डिग्री क्या करता था कि फ्री फ्राइज का कैंपेन रन करता था किसी भी लोकेशन पे। वो जब भी कोई नया रेस्टोरेंट या नया कैफे अपना ओपन करता था तो दे यूज्ड टू बी लाइक फ्री फ्राइज, बट आपको ओनली कंडीशन इज दैट यू हैव टू sorry, you have to share, you have to post it on your story, you have to share this। ये ऑफर लगा था, जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, जस्ट लुक एट दिस, फ्री फ्राइज फॉर फर्स्ट 100 गेस्ट, फ्री फ्राइज, फ्राइज प्लस कूलर 199। ये हुक है, ये 0 डिग्री के हुक हैं जो वो यूज करता है एड में, बिकॉज कस्टमर को जब तक आप कुछ दोगे नहीं, राइट। फ्री फ्राइज को भी इस तरह से नहीं दिखाया गया कि इट शुड लुक ऑर्डिनरी, कि एक सिंपल से गंदे से बॉक्स में रख दिया, उसको प्रीमियम किया गया, राइट, विद सॉसेज, विद मेयोनीज, एवरीथिंग। और उसकी जो जिसमें वो डाला गया टम्बलर में, उसको एक ब्रांड वैल्यू दिखाया गया ताकि एक 250 300 जो भी एक वैल्यू का प्रोडक्ट है वो कस्टमर को फील होगी उसको फ्री मिल रहा है व्हेन ही शेयर्स। हमने वो स्टोरी बहुत बार सुनी है कि एक आदमी 200 लोगों को जानता है, राइट। आज इंस्टाग्राम के जमाने में एक आदमी 1000 लोगों को जानता है। तो यूज दैट पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको उनके नेटवर्क को यूज करना है। जितना आप उनके नेटवर्क को यूज करके अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो आपके ब्रांड के लिए। 0 डिग्री यही किया। 0 डिग्री ने किसी भी लोकेशन पे जब वो खोलता था रेस्टोरेंट, दे यूज टू फ्री फ्राइज। अब इसमें फ्राइज का हमें सब पता है कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है आपको, और आज की डेट में सबसे डिफिकल्ट थिंग है कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अगर फ्राइज देके आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसी नेटवर्क में, क्योंकि जो लोग भी वो शेयर करेंगे, जो आपके यहाँ पे आएंगे, वो आपके एक डेमोग्राफिक एरिया के हिसाब से ही होंगे, 3-4 किलोमीटर के एरिया में होंगे, और वो 4 किलोमीटर में जितने भी लोग उनको जानते होंगे वो भी वहां पे रहते होंगे। तो आपका मैसेज कन्वे हो गया ना दैट यू आर ओपनिंग। तो फ्री प्राइस देने में उसका गया नहीं कुछ भी। तो इस तरह से आपको भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना के हुक क्रिएट करने हैं अपनी एड्स में, दैट पीपल शुड शेयर देयर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन द इंस्टाग्राम स्टोरी, और आपको टैग करें ताकि आपका जो अवेयरनेस, जो आपको आपकी ब्रांड विजिबिलिटी है वो मल्टीप्लाई हो सके। और दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हमने कुछ भी कंटेंट बनाया,
हम रील पे वैसे ऑर्गेनिक पुश, ऑर्गेनिक और पेड दो तरह की एड्स होती है कंटेंट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इफ एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनिक और पेड एड्स क्या होती हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ऑर्गेनिक और पेड एड्स में क्या डिफरेंस होता है. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. ऑर्गेनिक, चलो मैं बताता हूँ. ऑर्गेनिक क्या होता है कि जब आप कोई चीज आपने बनाई, रील बनाई, आपने पोस्ट कर दी, तो वो जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है उसको पुश करता है विदाउट एनी डेमोग्राफिक लिमिटेशन, कि आप कहीं भी जा सकते हैं. वो इंडिया के किसी भी सेक्टर में व्यू मिल सकता है, कहीं भी कोई बंदा बैठा है. अब वो रेलिवेंट नहीं है आपके बिजनेस के लिए. कोई अगर अगर मेरा रेस्टोरेंट लुधियाना में है और मेरी जो वीडियो है उसके 50,000 व्यूज है, उसमें से 40,000 व्यूज मेरे आउट ऑफ द डेमोग्राफिक आया है, जो मेरे 4-5 किलोमीटर के एरिया से बिल्कुल बाहर है, तो मेरा कस्टमर कन्वर्जन कभी होगा ही नहीं. राइट. तो जो कंटेंट आपको आप फूड ब्लॉगर से क्रिएट करवाना है, उसको आपको पेड एड्स यूज करके, रन करके, आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है आपके 3 या 4-5 जो भी आपका डेमोग्राफिक एरिया है वहां पे. तो कंटेंट आपको यूजीसी मतलब फूड ब्लॉगर्स या जो भी आपके यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं उनसे क्रिएट करवाना है, या फिर आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो. और उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको कैंपेन्स रन करने हैं. और कैंपेन एड जब हम रन करते हैं तो हमें लगता है कि इंस्टाग्राम के नीचे एक बूस्ट की ऑप्शन आती है. किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो वो बूस्ट की ऑप्शन आएगी इस तरह से. इफ यू कैन सी, बूस्ट की ऑप्शन आती है और हम इसको क्लिक करते हैं. हमें लगता है कि दिस इज वन वे. ना करने से ये भी बेटर है कि आप 2 किलोमीटर के एरिया को डिफाइन करो, बट द बेटर वे इज टू रन एड्स थ्रू एड मैनेजर. फेसबुक का एक, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. एड मैनेजर होता है फेसबुक का. फेसबुक के एड मैनेजर से आपको एड्स रन करनी है. आपको डिफाइन करना है आपके प्रोडक्ट्स को, जो भी आपने कंटेंट बनाया है, और जो टारगेट ऑडियंस थी आपकी, जो डिफाइन हुई थी, उसी टारगेट ऑडियंस को आपको सिलेक्ट करना है. फेसबुक के एल्गोरिथम को बताना है कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के और इस तरह के डेमोग्राफिक और बिहेवियर वाले लोगों को ही ये एड दिखानी है. तो आपका जो कन्वर्जन होगा वो फास्ट होगा और आपका पास जो कस्टमर आएगा वो ज्यादा आएगा. तो ये पूरा सेशन जो मैंने बताया आपको, कि आपको आपके मार्केटिंग सपोर्ट से आपको समझना है कि पहले आपको आपकी मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, कस्टमर. आपको वैल्यू प्रोपोजिशन दिखानी है, आपके कस्टमर का बाइंग बिहेवियर देखना है, फिर उसके अराउंड ऑफर्स क्रिएट करनी है, फिर कंटेंट क्रिएट करना है. हम क्या करते हैं, हम फोन उठाते हैं, फोटो खींची या हम वीडियो बनाई, रील बनाई, और हमें लगता है हमारी मार्केटिंग हो रही है. मार्केटिंग वो नहीं होती है. मार्केटिंग इज कंप्लीट स्ट्रेटेजी, और इंस्टाग्राम इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. तो उसकी इंस्टाग्राम के चैनल को आप यूज करो, उसके प्लेटफॉर्म को यूज करो, और मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को और अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करो. तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी नो. Yes, guys, we are open for Q&A. If anybody has any questions. I think there are a lot of people जो बोल रहे हैं आप PDF share करोगे, आप presentation share करोगे. I will send you a PDF, then you can just put it in the group and let. Yes, of course. So guys, जिसको नहीं पता है, for people who are not aware, we have a WhatsApp group specifically for webinars, and we do share all the recordings का link and PDF and presentation that our speakers share in that group. There's someone, Atul Hotel PR Residency. Guys, if you can write your name as well so that it's easier for us. He's asking that you have any marketing ideas for Cloud Kitchen on Instagram. Parth, hey Parth. So Parth is asking that question. This is my favorite. See, webinar तो क्या है कि मेरे को ना बहुत talking to the camera is a very difficult thing for me, right? Yeah. The only camera I don't understand, but this is something which I will definitely enjoy कि जब हम 1-to-1 session. हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन है marketing ideas for Cloud Kitchen on Instagram, right? तो देखो, आपका सेम वही चीज जो मैं बताई आपको कि आपका यूएसपी क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी किसी क्लाउड किचन को कंसल्टेंसी दिया और बताया कि भैया एक अच्छा खाना, थाली समथिंग विच इन द लंच पीपल मोस्टली लुक फॉर, राइट? बहुत सारे लोग सर्च करते हैं
जोमेटो पे और स्विगी पे। अब वो जोमेटो और स्विगी की जो मार्केटिंग आइडियाज है वो डिफरेंट होंगे, पर मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूँ। तो यहाँ पे थाली में यूएसपी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? टेस्टी खाना, राइट। और क्या हो सकता है? देसी घी में बना हुआ खाना, ठीक है। देसी घी विल बिकम अ यूएसपी ऑफ योर ब्रांड, ठीक है। अब आप समझ लो कि आप थाली बेच रहे हो जोमेटो पे या स्विगी पे, तो सिर्फ एक देसी घी डालने से आप बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर ले आओगे, बिकॉज अब वो दिखाना भी है, आपको बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना है। आप बैक एंड पे किचन बिहाइंड द सीन्स दिखाओ, ऑथेंटिक रहो, आपकी किस तरह की प्रेपरेशन हो रही है। मेक लॉट ऑफ कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम अराउंड योर ब्रांड, कि आप कुकिंग करते हुए आप किस तरह से हाइजीनिक रह रहे हो, आपका जो स्टाफ है वो क्या हाइजीनिक हैबिट्स, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस ऑफ कंटेंट बनाओगे आप, राइट। 10 to 20 पीसेस ऑफ कंटेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि थाली के अराउंड आपका यूएसपी क्या हो गया? देसी घी। तो इसके अराउंड आपको हमेशा मैसेज अपना कन्वे करना है, राइट। देसी घी वाली थाली मंगाओ या कुछ भी, तो उस यूएसपी को विजुअली कैप्चर करो। ये बहुत बड़ी डिवाइस है आपके हाथ में। पहले क्या होता था कि आज से पहले जब भी आपको कंटेंट कुछ क्रिएट करवाना होता था या कुछ तो आप पहले तो कैमरा वालों को बुलाते थे, ठीक है, फिर वो शूट करते थे, फिर आप न्यूज चैनल को या किसी को देते थे, फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आज एवरीथिंग इज एट इन योर हैंड। आपके पास पूरे का पूरा प्रोडक्शन हाउस है। आप समझो इस बात को, इसकी पावर को समझो। आज से पहले ये कभी हुआ नहीं है। दिस इज द कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस इन योर हैंड एंड द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन योर हैंड। ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया है रेस्टोरेंट केस स्टडी ऑन इंस्टाग्राम, ये 2 महीने पहले क्रिएट किया, और 2 महीने में आई हैव 8700 फॉलोअर्स, और एक फैमिली है, इंस्टा फैमिली, जिनके साथ मैं रोज कनेक्ट करता हूँ। पीपल आस्क मी कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, हाउ कैन वी डू दैट, हाउ कैन वी सॉल्व दिस थिंग। तो दैट इज द पावर ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट विद द पीपल। आपके ब्रांड की यूएसपी क्या है? अगर आप मेरे को ऑफलाइन मिलते हो, कस्टमर को मिलते हो, तो जो बात आप मुझे ऑफलाइन बताओगे उसको लाउड एंड क्लियर आपको इंस्टाग्राम पे बतानी है। और वही जो मैंने बताया कि इंस्टाग्राम एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, तो विजुअली बतानी है आपको, अच्छी वीडियोस बनानी है। आज की डेट में हमारे पास सबके पास अच्छा कैमरा होता है, मोबाइल अच्छा होता है, वी हैव एवरीबॉडी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, ये क्या कहते हैं इसको, जो इंटरनेट। तो इंटरनेट चाहिए, कैमरा चाहिए, बस काम हो गया आपका। Sorry to interrupt. That I understand, but my main point is like what these content UGC or food making content we usually create and market. But overall strategy for running the page, what type of content? One message, one ad. Okay. आपका हर एड में 1 मैसेज 1 एड जाना ही चाहिए। समझ रहे हो कि अगर देसी घी आपका यूएसपी है, फॉर एग्जांपल देसी घी यूएसपी है, तो वो देसी घी देखो कस्टमर को एक बार में याद ही नहीं रहेगा, राइट। आप 10 तरह के जब क्रिएटिव्स बनाओगे, व्हेन यू मेक 10 क्रिएटिव्स, राइट, और 10 क्रिएटिव्स में डिफरेंट तरीके से आपने उसको क्रिएट किया, बट मैसेज एक ही है, देसी घी, शुद्ध देसी घी। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, राइट, ठीक है, तो आपका मैसेज उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। पहली बार में तो कस्टमर अपने बाप की नहीं सुनता, आपको 10 बार बताओगे तब जाके कस्टमर के यहाँ पे रजिस्टर होगा कि भाई यहाँ पे कोई चीज मिलती है, जो फिर वो एक्शन लेगा जोमेटो और स्विगी पे जाके। ओके। तो आपको आप जब अपना ट्रैफिक डाइवर्ट करोगे अपनी इंस्टाग्राम एड्स के साथ, तो जोमेटो और स्विगी भी आपको वो रिवार्ड करते हैं कि भाई कहीं बाहर से ट्रैफिक आ रहा है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग, बट द थिंग इज आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। Okay, so that one is like we can market run ads on USP with the product USP, right? And the other type of marketing which we can also run, is it good to run ads on the basis of price point as well? Yes. For example, on the basis of like getting a burger at ₹100/100 only. So those kind of price targeting marketing also. I always say 99 करो, 100 फिर भी एक वो ₹1 का इसीलिए साइकोलॉजिकल गैप होता है। अगर 100 का है तो 99 करो। देखो आपको वैल्यू प्रोपोजिशन आपको ढूंढनी है। मैंने आपको दिखाया ना, अभी मैं एग्जांपल दिया आपको बारबेक्यू नेशन वाला। बारबेक्यू नेशन ने 399 में पावर बुफे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, बट अगर वो 399 वाला पावर बुफे लॉन्च करता रहेगा और बेचता रहेगा तो वो कल ही बंद हो जाएगा, राइट।
तो 399 वाला सिर्फ अटेंशन, मैकडोनल्ड्स ऐड लगाता है मैकालू टिक्की बर्गर एट 25, बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देखते हो, मैकालू टिक्की बर्गर एट 25 रुपीज, राइट। बट आप आज तक किसी का भी बिल 25 रुपए नहीं आया मैकडोनल्ड्स में, Right. राइट। मार्केटिंग टीम का काम होता है टू शो द अग्रेसिव प्राइसिंग, और सेल्स टीम का काम होता है टू अपसेल, टू क्रॉस सेल, टू कन्वर्ट द पीपल। आपकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए आपके रेस्टोरेंट में, ठीक है। Right. तो आपको वैल्यू प्रोपोर्शन आप दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकते हो कि हाँ भाई जो एंट्री गेट है वो छोटा होना चाहिए कस्टमर के लिए, बट आपको जब सॉरी आपको जब बिजनेस बनाना है या प्रॉफिट बनाना है, वो आपके प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट्स होंगे उन्हीं से बनेगा, तो वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके ही होगा। Right. मार्केटिंग में आप 99 वाला बर्गर दिखा दो, बट जब जिस लैंडिंग पेज पे या जहां भी वो आ रहा है वहां पे कुछ और भी ऐसी चीजें हो जहां जिसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हो, जिसको हम बोलते हैं डेकॉय इफेक्ट। Right. अगर आप लोग सब समझते हो डेकॉय इफेक्ट, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। डेकॉय इफेक्ट क्या होता है कि आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 तरह की कोल्ड ड्रिंक्स मैकडॉनल्ड्स में पीने जाते हो, तो लार्ज और मीडियम में जो डिफरेंस होता है वो बहुत मतलब ज्यादा होता है, और स्मॉल और मीडियम में, तो मीडियम आपको वैल्यू प्रोपोर्शन ज्यादा लगती है कि आप कहते हो चलो यार मीडियम ले लेता हूँ, लार्ज थोड़ा महंगा लग रहा है, स्मॉल और मीडियम में ज्यादा फर्क है नहीं। अब रेस्टोरेंट को मीडियम ही बेचना होता है, उसको लार्ज और स्मॉल बेचना ही नहीं होता, तो वो डेकॉय इफेक्ट यूज करके वहां पे कस्टमर को वैल्यू प्रोपोजिशन दिखाता है। कस्टमर कभी भी कोई चीज तभी बाय करेगा जब उसको वैल्यू दिखेगी वहां पे, अदरवाइज इस दुनिया में कोई चीज सस्ती नहीं है, कोई चीज महंगी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ योर कस्टमर इज गोइंग टू परसीव द प्रोडक्ट वैल्यू। Right. So the main focus of running ads or marketing should be based on the what value are we offering to the customer. So that should be a main main point. टू स्ट्रेटजीज, ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड पोजीशनिंग, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था। ब्रांड अवेयरनेस में आप पहले तो बताओगे कि पहले आप सेल नहीं कर सकते हो, राइट। पीपल हेट एड्स। आप भी जब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जाते हो, पीपल हेट एड्स, एवरीबडी जस्ट स्किप द एड्स, बिकॉज वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे इज नॉट देयर टू सी योर एड, ही और शी इज देयर टू कंज्यूम द कंटेंट। आपका जो एड है वो उसके नेचुरल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट, तो वो स्किप मार देगा। बट अगर आपने अपना फन एलिमेंट और उसके अराउंड मैसेजिंग कर दी तो वो उसके रजिस्टर हो जाएगी। सेल नहीं करना है, जस्ट मेक देम अवेयर एट द फर्स्ट स्टेज, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को। तो आपको फनल क्रिएट करना होता है। इन मार्केटिंग वी से दैट फनल क्रिएट करना होता है। पहले आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, उसके बाद आपको आपके प्रोडक्ट्स की यूएसपी दिखानी होती है डिफरेंट स्टाइल में, राइट। तो मैंने बताया ना आपको 4, 5, 6 पहली बार में कस्टमर के यहाँ पे रजिस्टर नहीं होता। 7वीं 8वीं एड पे आपका वो उसको समझ आएगी कि ओके दिस इज समथिंग मैंने पहले भी देखा, बट नाउ वो कॉल टू एक्शन ले लेगा। सीटीए आपका डिफाइन उस एड में, जो लास्ट के 6th या 7th एड होंगी, उस एड में आपका सीटीए डिफाइन होना चाहिए, Right. ये मतलब कॉल टू एक्शन, कि वो लैंडिंग पेज कहाँ पे जा रहा है, जोमेटो पे या स्विगी पे जा रहा है, और उस तरह से। That's so good, Atul. I mean, there are few nuggets that even I was not aware. There's someone, Utkarsh Panav, is asking, how can we conduct practical business research for any cloud kitchen? How can we conduct practical business research? देखो, Yeah. ग्रे एरिया, और बिजनेस ग्रे एरिया में ही बनता है, ना व्हाइट में बनता है ना ब्लैक में बनता है। बिजनेस बनेगा हमेशा ग्रे एरिया में, तो आपको वो ग्रे एरिया ढूंढना पड़ता है। अब वो रिसर्च कैसे करनी है, तो आप क्या करोगे कि आप इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल, जो मतलब रिलेटेबल एग्जांपल जो मैं देता हूँ वो है बोट कंपनी का। कि बोट ने जब अपने हेडफोन्स लॉन्च किए तो उसकी जो क्वालिटी थी वो ना तो जो ऐसे सस्ते हेडफोन्स अवेलेबल थी वैसी थी, और ना जो महंगे थे। तो उसने ग्रे एरिया में पोजीशन किया जहाँ पे कस्टमर कंफर्टेबल था प्राइस वाइज, और उसमें कम क्वालिटी दे दी वो वाली जो प्रीमियम ब्रांड्स दे रहे थे। तो बोर्ड को वो अटेंशन मिल गई, उसने वो। तो उसी तरह से एक और ब्रांड है जो जिसने क्लाउड किचन में काफी अच्छा फोड़ा है, हॉय फूड्स करके एक कंपनी है, एवरीबडी मस्ट बी अवेयर ऑफ। कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे होटल्स थे उस
होटल्स की किचन क्या होती है, उनके लिए लाइबिलिटी होती है, राइट। अब होटल्स की किचन को रन करना इज अ लाइबिलिटी फॉर द होटल ओनर, क्योंकि अच्छे शेफ को हायर करना पड़ता है, टीम को हायर, वही चैलेंज जो हम सबको आते हैं, राइट। तो हॉय किचन, हॉय ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये आप लोग अपनी किचन हमें दे दो, हम आपको आपकी किचन को ऑपरेट करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, आपको 25% शुद्ध मुनाफा दे देंगे, 25% शुद्ध मुनाफा देंगे, ठीक है। अब होटल वाले को क्या चाहिए था, इससे बड़ी उसकी सिरदर्दी खत्म, ऊपर से 25% प्रॉफिट भी हो गया। तो उसने उनके एरिया को यूज करके अपना क्लाउड किचन नेटवर्क खड़ा कर दिया। एक तो उनके रेस्टोरेंट्स होटल में जो गेस्ट आ रहे थे उनको फूड सर्व किया, प्लस अपनी क्लाउड किचन के लिए 250-300 आई थिंक दिल्ली में जीरो कॉस्ट पे क्लाउड किचन नेटवर्क कर दिया। तो यू हैव टू ऑलवेज फाइंड द ग्रे एरिया कि कहां पे ग्रे प्रॉब्लम्स कहां पे है। ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो बहुत सारे लोगों की है, जैसे कि मैंने ढूंढा, मैंने ये बुक क्यों लिखी, 60% रेस्टोरेंट पहले साल में बंद हो जाते हैं, राइट। अब सबको मैं 1-to-1 सेशन नहीं दे सकता हूं, ठीक है। अब इस बुक में या जो कोर्सेज आ रहे हैं मेरे, उनमें मैंने वो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर दी है, बता दिया है कि ये स्ट्रेटेजीज आप प्रैक्टिकली जो हमने लॉन्च किया, जो हमने एग्जीक्यूट की, उसको करो, अपने बिजनेस में अप्लाई करो, आपको रिजल्ट दिखेंगे। अब 1-to-1 में नहीं डिफरेंशिएट ले सकता, बट जब मैं उसको एक पर्टिकुलर, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को, जो छोटी सी प्रॉब्लम भी हो, कि अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो बहुत कम लोगों की है, आप किसी को, कई बार मैं देखता हूं कि यार यहाँ पे ना ये वाली चीज नहीं है, अमेरिका में ये चीज है बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अरे भाई, ये भी देखो कि यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर में है कि नहीं है। आपका एजुकेशन उसको अवेयर करने में इतना पैसा खर्च हो जाएगा, आप कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हो। आपको आपके रेस्टोरेंट के प्रोडक्ट्स, वो आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है, जो वो कंज्यूम करता है नेचुरली, उसके अराउंड ही लेके आने हैं, उसके अराउंड ही लॉन्च करने हैं। Yes, so Raman is saying Hoi Kitchen worked fully on frozen food only. वो अभी किया उन्होंने आफ्टर, जब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, उनके सारा, क्योंकि होटल्स बंद हो गए थे, तो होटल्स बंद होने के बाद उनका वही यूएसपी, क्योंकि फ्रोजन फूड ही दे रहे थे वो। Yeah. वैसे भी अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हमारा मैक्सिमम, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें फ्रोजन पे चलती हैं, फ्रेश प्रिपेयर करना इज डिफिकल्ट। आप 15 मिनट में सर्व कैसे कर दोगे गेस्ट को जब आपके पास प्री प्रिपेयर्ड फ्रोजन फूड नहीं है, Right. राइट। तो फ्रोजन, और उसने एक पर्टिकुलर और बना दिया हॉय फूड ने आफ्टर लॉकडाउन, कि आप अपना वो एक नया ब्रांड, बिकॉज उनके पास सारा वो प्लेटफॉर्म रेडी था, सो इट वाज इजी फॉर देम। Sure. That's amazing. So guys, anyone has any questions? Also, there's one thing I'd like to request. I'm putting in a feedback form per link in the chat box. I would really like to receive some feedback of how we can improve our webinar experience next. So, and it can be anonymous. You don't have to even write your name. Second thing I'm putting in is our registration link. For people who are not yet on Geno, and if they want to register, they can register via that link. There's a YouTube channel and WhatsApp group link. So if you want to join our WhatsApp group, we don't spam, we don't do anything. We just post about upcoming webinars and webinar recordings and our YouTube channel. So, guys, anyone has any questions regarding Instagram? somebody Yeah. asked, somebody put, उन्होंने अपना Instagram डाला है, तो मैंने अभी खोला हुआ है Instagram. Okay, I think I've sent privately. हाँ, या no, Rakesh Dugar send me the cha binas. Okay. There's someone else, Raman is asking, how do you market a pizza brand with awareness and marketing point of view? As previously many brands existed in the food industry already. Exists in food industry already. तो see, you already finding the problem कि अगर आपको पिज्जा में ही, तो आपको डिफरेंशिएटर पहले तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, until or unless आप अगर जेनरिक पिज्जा ब्रांड लॉन्च कर दोगे तो आप प्राइस वार में घुस जाओगे, आप एक जनरल ब्रांड ही खड़ा कर पाओगे, that will not make sense and that will not be a profitable business for you. तो आपको पहले तो यूएसपी डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि वुड फायर पिज्जा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैफे टू कैफे। वुड फायर कस्टमर, यहाँ पे मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट क्लाइंट हैं, उनके वैल्यू नहीं करता वुड फायर को, और वुड फायर की ऑपरेशनल कॉस्ट हाई हो जाती है। तो आपको आपके यूएसपी डिफाइन करना है। इट कुड बी अ रेंज, वेराइटी,
या फिर आपका डो आपका ऐसा होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसी यूएसपी आपको पहले डिफाइन करनी पड़ेगी कि दिस इज, और फिर उसके अराउंड आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कितना बड़ा वो चैनल है। जैसे पिज्जा बुफे करके एक प्रोडक्ट होता है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बट उसमें वैल्यू प्रोपोजिशन दिखाना है, बिकॉज कस्टमर नेचुरली कंज्यूम नहीं करता उतना सारा पिज्जा। तो ये सारी रिसर्च का पार्ट है। यू हैव टू बी ऑलवेज लाइक ऑन द टोज, कि आपको वो ग्रे एरिया ढूंढना है यहाँ पे कि पिज्जा डोमिनोज ये दे रहा है। डोमिनोज इज नॉट नोन फॉर द, आप सबको क्या लगता है डोमिनोज के पिज्जा बहुत टेस्टी होते हैं? डोमिनोज के पिज्जा टेस्टी नहीं होते हैं। डोमिनोज ने ये बात 2009 में खुद भी मानी थी कि देयर पिज्जा टेस्ट लाइक अ कार्डबोर्ड। ये एक्चुअल में कैंपेन है उनका, 2009 में रन किया था डोमिनोज का। डोमिनोज की यूएसपी है 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर करना। तो उसका जितनी भी उसकी इनोवेशन है, जितनी भी उसकी मार्केटिंग कैंपेन्स है, शुरू से ही उसका इसी पे रहा है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आप डोमिनोज के बाहर बहुत सारी बाइक्स देखोगे, पिज्जा हट के बाहर उतनी बाइक्स नहीं दिखेंगी आपको। तो डोमिनोज अपनी ऐप से लॉन्च करने वाला एक पहला वो, तो उसका हमेशा यूएसपी यही रहा कि वो पिज्जा डिलीवर फटाफट करता है। दे वांट टू बी, किसको अच्छा पिज्जा खाना है। ओ शाह, जस्ट अ मिनट, आई थिंक You have a power cut? या पावर कट तो था, बट जस्ट लेट मी स्विच। Oh, I'm just switching the camera. Just give me a moment. yeah, sure. So guys, while Atul is switching his camera, getting back on, there's one quick poll that I request you guys to take on. I'm just launching it on the screen. It'll just help us know our audience better. You can see it on your screen now. Oh, that's interesting. So guys, while Atul comes back, let's just maybe introduce ourselves, put your brand's name in the chat, get to know us each other better. So am I visible now? Yes, Atul, you're visible. Yeah. So okay. So we were discussing. I was just trying to pump up the audience while you take over. So I think we were discussing Raman's question about pizza brand, like pizza's USPs. हाँ, तो वही आई वाज जस्ट टेलिंग यू दैट डोमिनोज का यूएसपी है पिज्जा डिलीवर करो। तो उनका जितना भी मार्केटिंग कैंपेन, जितना भी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेंडिंग, वो हमेशा उसी पे रही है कि दे नो देयर स्ट्रेंथ, कि उनको पिज्जा फटाफट डिलीवर करना था, राइट। तो इसी तरह से आपको पहले आपकी यूएसपी डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपको ऐसी क्या, वही सेम चीज कि बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम ढूंढो, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो, उस छोटी प्रॉब्लम के अराउंड ही अपना जो भी आपका पिज्जा ब्रांड आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो, जस्ट सी कि आप वो प्रॉब्लम का यूएसपी या वो कैसे सॉल्व करोगे। यू डोंट हैव टू रश स्टार्ट बिजनेस। जितनी जल्दी खोलोगे उतनी जल्दी रेस्टोरेंट बंद होने के चांस भी हो जाते हैं, और जितना टाइम लगाओगे रिसर्च के ऊपर और जितना टाइम लगाओगे यूएसपी डिफाइन करने पे, उतना ही रेस्टोरेंट लंबा चलता है, राइट। तो प्लानिंग शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप ऐसा डिफरेंशिएटर क्या लाने वाले हो जब मार्केट में इतनी सारी ऑप्शंस कस्टमर के पास है। Actually, Atul, I have just one more thing to want to ask. मैंने जो अपना पिज्जा कैफे शुरू किया था, मेरा टेक अवे है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे पास जो लोअर एंड का कस्टमर है, कि मेरा ना समोसा भी रखा हुआ विद पिज्जा। दिस वाज माय डिफरेंशिएटर। तो जो मेरे पास जो मेरा टारगेट मैंने ये रखा था कि आई एम ऑडिबल टू यू, या यू आर ऑडिबल, कि मेरा टारगेट कस्टमर मैंने ये रखा था कि जो लो बजट का होगा वो मेरा उस पे फुटफॉल क्रिएट कर लेगा, और जो थोड़ा सा हाई बजट या थोड़ा सा ऊपर का बजट को होगा वो मेरे इस वाले फास्ट फूड में आ जाएगा। फॉर द टाइमिंग एक अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई है, बट उसको और स्केल कैसे करें इन द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई वांट टू लुक फॉर दैट।
for that I have to understand more about your products, more about your customers ना, तो आप जाके you can ask me in the DMs Instagram पे रेस्टोरेंट में, आप अपना पूरा मुझे एक बार प्रोफाइल भेज देना, I will go through your complete page. जब तक मैं I will not understand that कि क्या है आपका USPs, क्या है आपके प्रोडक्ट, क्या है आपका ऑलरेडी कस्टमर जो है वो क्या है, I will not be able to give the valuable feedback, right? Okay. And what we I will can give do you a here, you can drop in your email ID in the chat box, or Yeah, I'll for share Atul's email ID in the chat box here. And Atul, if you're okay with it, and anyone Yeah. who's comfortable or anyone who has any questions in detail, they can, just reach out to him via email with all the details. So that is something that might be helpful. I've just had a feedback, email ID in the chat box. Insta handle. Yes, Rakesh, I'll share his Insta handle as well. While we also have 2 questions because we have a lot of people in the queue. So let's take those 2. We have Abhishek Thakur who's asking that if you are a franchisee outlet but company not support in marketing, and other hand, if you start marketing for your outlet, it's ultimately benefit company, how to deal with the issue. So basically what I feel is, Abhishek, you've taken a franchisee of one of the brand and they don't support in marketing. And even if they market, that's the brand ka hi naam, the franchise, a particular franchise is too famous or as well. I think that's his question if I'm not wrong. Yes. Yeah, I got it. So the thing is, ये प्रॉब्लम बहुत सारे मेरे भाइयों और दोस्तों की आती है कि फ्रेंचाइजी लेते हैं और उसके बाद कंपनी सपोर्ट नहीं करती है वो। आप समझो मेरी बात, फ्रेंचाइजी पहले वो पोटेंशियल देखती है, कुछ XYZ फैक्टर देखती है, और उसके बाद उनको लगता है कि अरे, तो हर एक कंपनी के कल्चर डिफरेंट होता है, बट बिजनेस तो आपका है ना, पैसा आपने लगा दिया, राइट? अगर वो सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा, और आइदर यू वांट योर मनी टू गेट ड्रेन्ड आउट, की जाने दो उसको वहां पे। अभी एक ब्रांड का नेम नहीं लूंगा, मुंबई के एक बहुत सारा चाय के ऊपर ही है, नॉट MBA चाय वाला, बट डिफरेंट एक है उन्हीं कंपटीशन में, तो दैट कंपनी आल्सो नॉट सपोर्टिंग। तो उन्होंने उसका, मैंने बोला कि भैया, मतलब बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टिंग, कि और ये भी नहीं कि उनको खुद भी नहीं करने दे रहे, दे आर नॉट लेटिंग देम डू आल्सो, तो मैंने कहा उनके नाम के 3 अक्षर हैं, उसके बीच का नाम निकाल दो और अपना नाम बना दो, और जो करना चाहते हो प्रोडक्ट्स, जो आइडियाज हैं आपके पास, जो जिस तरह के प्रोडक्ट्स आपको लॉन्च करने हैं एज पर द कंज्यूमर बिहेवियर जो आपके लोकल मार्केट में है, कर दो लॉन्च, ठीक है? बिकॉज पैसा तो आपने लगाया, राइट? अगर कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। अगर वो आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ कि आप उनके ब्रांड के अंडर करना है या नहीं करना, वो आपकी कॉल होगी। बट थिंग इज, आप अपने बिजनेस को बंद होते नहीं देख सकते ना, तो यू हैव टू टेक अ कॉल। True. We have another question from Varsha. She's asking, I have one outlet and we are running at no profit, no loss. In this condition, can we still start another one or focus on one outlet? So they have a 1-year-old cafe. तो देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस अभी कितनी देर में हुआ है? 1 year old कैफे। हाँ, तो एक चीज तो होती है कि ये ना उसके साथ भी हुआ था, मैं एग्जांपल तो सबवे के साथ भी हुआ था। सबवे वाज अबाउट टू, जब सबवे स्टार्ट हुआ था, हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी चेन्स बन गई है, बहुत बड़ा, अरे सब छोटे से स्टार्ट हुए हैं, सब रेस्टोरेंट, सब कैफे, मैकडोनल्ड्स तो फूड कार्ट से स्टार्ट हुआ था, छोटे से कार्ट से। आज मैं देखता हूँ लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार कोई फूड कार्ट को स्टार्टअप बोल रहा है, तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं उसका। मैकडोनल्ड्स, सबवे, हर ब्रांड नीचे से ही स्टार्ट होता है, एक बार वो वैलिडेट हो जाता है मार्केट में तो वो स्केल अप होता है, राइट? पीपल बिकम पार्ट ऑफ योर टीम और वो स्केल अप होता है। तो सबवे के साथ भी यही हुआ था। सबवे का आउटलेट वाज इनटू लॉसेस एंड दे वर डिसाइडिंग कि अब इसको बंद करते हैं। तो उनके जो फाउंडर थे, 2 फाउंडर थे, तो उसमें जो आई एम जस्ट नॉट रिकॉलिंग द नेम, तो ही सेड कि एक और लोकेशन पे खोल देते हैं, लेट्स सी, मे बी डबल हो जाए या कुछ, एंड दैट थिंग हैपन। वो हुआ क्योंकि कई बार क्या होता है, एक लोकेशन पे आपका प्रोडक्ट, आपका कस्टमर टोटली डिफरेंट होता है, बट आप जब नई लोकेशन खोलोगे या किसी भी दूसरी लोकेशन में खोलोगे तो उस लोकेशन पे खोलो जो वेरिएबल्स आपके इस लोकेशन पे नहीं है।
या जो टारगेट कस्टमर यहाँ पे नहीं आ रहा है, अगर आप सेम वही गलती करोगे जो इस लोकेशन पे, तो आपको ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत महंगी पड़ेगी। प्लस आपके पास कम से कम 6 महीने या 7 महीने का या 8 महीने का उसका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, एक तो कैपेक्स आएगा आपको चलाने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप नया लोकेशन खोलोगे, और एक उसको चलाने का ऑपरेशनल कॉस्ट आएगा। वो आपके पास कम से कम 1 साल, 6 महीने, 1 साल का होना चाहिए, बिकॉज दैट मच टाइम यू विल नीड टू एस्टेब्लिश और आपको अंडरस्टैंडिंग करने में। तो खोल भी सकते हो, नहीं भी खोल सकते, चॉइस इज योर्स। अगर आपके पास तो थिंग्स मे वर्क आउट, थिंग्स माइट नॉट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी कॉल है कि आपको लगता है कि यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट्स है वैसा टारगेट कस्टमर रीच आउट नहीं हो रहा है। अगर मैं एक पर्टिकुलर ऐसी लोकेशन में खोलूंगी, मान लो यंग क्राउड है, तो कॉलेजेस के पास ऐसे खोल दूंगी तो चल जाएगा, तो खोल दो। I hope Varsha, that answers your question. Yeah. So she was saying that first we will make backup. Yeah. We have Praveen Bihari who's asking, our cafe is inside Noida Stadium. Our problem is that it is good to sell when any sports activity is happening. Otherwise, the sale decreases. वो तो खैर ऑब्वियस है, दैट इज ऑब्वियस थिंग। वो तो अब यू कैंट डू एनीथिंग। आई डोंट नो कि आपकी सिचुएशन क्या है, कि अगर नोएडा स्टेडियम में है तो जब कस्टमर आएगा वहां पे तभी आप उनको खिलाओगे, जब कोई आएगा ही नहीं तो आप खिलाओगे किसको? द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी ऑलवेज, वो तो अब उसको आप क्लाउड किचन या कुछ और, जब नहीं आ रहा कस्टमर तो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो जिसको अपनी एग्जिस्टिंग, बट वही देन अगेन जब आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको यूएसपी डिफाइन करनी पड़ेगी। ऑनलाइन भी आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो यू हैव टू ऑलवेज मेक द चॉइसेस एंड यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर द यूएसपी की क्या है। अब यहाँ पे तो आपकी डिपेंडेंसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ऊपर है, तो Yeah. इसमें तो Guys, anyone has any other questions? Online is a big game. Yeah, that's true. Even I agree. see, online is a big game in terms of competition also and in terms of potential also, right? The only thing is that if your USP is defined, if you are प्रोडक्ट से डिफरेंट, आप एक कुछ डिफरेंशिएटर लेके आ रहे हो, कस्टमर को तो अच्छा खाना चाहिए। अगर आपने प्रॉपरली वो मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, उसके दिमाग में रजिस्टर कर दिया, तो कंज्यूमर, वो 150-200 वाली गेम में जाओगे तो फंस जाओगे। सेल द क्वालिटी। Oh, Abhishek is asking about ONDC. ONDC, everybody is asking for ONDC these days। तो ONDC देखो यार, ONDC क्या है कि कोई भी चीज है उसको कस्टमर ही बनाते हैं। अभी ONDC इज एट अ वेरी स्टार्टिंग स्टेज, अभी कंज्यूमर अडेप्टेबिलिटी आई ही नहीं है, राइट? तो जब तक कोई भी प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आए, बहुत सारे इनोवेशंस हुई, बट कस्टमर जब आता है, जिस ट्रैफिक पे आता है, तभी वो चीज चलती है, अदरवाइज वो नहीं चलती है। तो इट इज वेरी एट अर्ली स्टेज। फ्यूचर में क्या होता है, ब्रांड्स कैसे उसको कोप अप करते हैं अभी, बिकॉज वेन एवर समथिंग इज न्यू हैपनिंग देयर इज लॉट ऑफ टॉक ऑफ द, वो चलता है, एवरीबडी इज टॉकिंग, बट कंज्यूमर बिहेवियर के अराउंड, और वो यूएसपी अगर या कुछ भी चीज है, डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा खाना, राइट? जोमैटो इतने साल से इस बिजनेस में है, स्विगी इतने साल से इस बिजनेस में है, फिर भी दे आर इनटू लॉसेस, बिकॉज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज समथिंग जो बहुत डिफिकल्ट है क्रैक करना। ONDCs, बिकॉज वो कंज्यूमर बिहेवियर के नेचुरल पैटर्न में नहीं है। जोमैटो ने पैसा खर्च किया है कि आज मुझे खाने की अगर ललक हो रही है तो मेरा बाय डिफॉल्ट मेरा दिमाग में जोमैटो और स्विगी आएगा, बिकॉज दे हैव स्पेंड सो मच ऑफ मनी, अपनी ब्रांड पोजीशन किया है वहां पे वो, और इसी के लिए अब ONDC वो कैसे और दूसरे प्लेटफॉर्म कैसे कर पाते हैं, वो फ्यूचर विल टेल। I think ONDC एक अलग ही चैप्टर है पूरा, which is like an endless chat. मतलब उस पे अगर डिस्कशन शुरू किया तो it'll take hours and hours and we can go. Yeah. Okay, I think we have one more question. So guys, I think we can take this question as last. So what should be ideal way to handle the online ad expense? Is it good to do or not? Mr. Rakesh has asked this question. See, whatever your अभी अगर आप मेरे पेज पे जाओगे रेस्टोरेंट केस स्टडी पे, तो वी आर स्टार्टिंग अ चैलेंज, मैं सबको बता देता हूँ, 90 days सेल्स डबल इज अ चैलेंज वी आर स्टार्टिंग।
तो वहां पे आई हैव आस्क्ड द रेस्टोरेंट टू साइन अप, और मोर देन 100 रेस्टोरेंट्स ने साइन अप किया है उस चैलेंज के लिए. बट इन द फर्स्ट फेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग विद ओनली 10 रेस्टोरेंट्स, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, राइट. 3 महीने में कुछ चीज को, सेल्स को डबल करना, बहुत सारे पैसा, बहुत सारी स्ट्रेटेजी आती है. तो अब वो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि वट एवर योर सेल इज, आपका जितना भी आज की डेट में सेल है या वट एवर सेल यू वांट टू अचीव, उसका स्टार्टिंग में मिनिमम 10% यू शुड बी स्पेंडिंग ऑन द मार्केटिंग, राइट, विद द प्रॉपर स्ट्रेटेजीज. और देयर हैव टू बी लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज 10 स्ट्रेटेजीज को हम जब इंप्लीमेंट करते हैं तो 3 चलती हैं, 7 फेल हो जाती हैं. जब आप एक ही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करोगे तो चांसेस ऑफ फेलियर आर 100%. सो द थिंग इज दैट आपका जो भी सेल है, जो भी आप चाहे 1.5 लाख है, तो आपका जो स्पेंड होना चाहिए स्टार्टिंग में, मान लो 1,50,000 आपका अगर मंथली स्पेंड है, मंथली सेल्स है, तो उसका 10% 15,000 आपको कर सकते हो स्टार्ट, अगर आपका बजट अलाउ करता है. तो मिनिमम 10% शुड बी, और वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए. मार्केटिंग को हम ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. मैंने शुरू में भी वेबिनार के बोला था कि यू हैव टू डेली टेल, आपको रोज 200 लोगों को कम से कम अपने रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस के बारे में बताना है. तो महीने में हो जाएंगे 6,000 लोग, और 6,000 के 3-4%, मतलब 150 से 200 लोग ही आपके कस्टमर बनेंगे उनमें से. और वो भी तब जब आपने बिल्कुल सही तरीके से उनको बताया होगा, उनके दिमाग में आपका मैसेज रजिस्टर हुआ होगा और अपने ब्रांड को पोजीशन किया होगा, राइट. तो आपको कॉन्टिन्यूसली बताना पड़ता है मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग इज समथिंग, हम रेंटल हाई दुकान ले लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, बट मार्केटिंग पे हमें एड स्पेंड करते हुए बहुत डर लगता है. क्यों लगता है भाई? नहीं लगना चाहिए. आपको 10% स्पेंड करना ही करना है. That's a really useful insight, Atul. So, guys, I think that's it for the day. I have kept Atul's email ID in the chat box below. आपको चाहिए तो मैं वापस डाल देती हूँ. You can drop him an email if you have any questions from him and if you want to speak to him in detail. Meanwhile, you guys can also be a part of our WhatsApp group. वो WhatsApp group में हम spam नहीं करते. We don't post anything. We just post about our upcoming webinars and sessions and the recordings of it. एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, I'm just again putting in the website, ये feedback form का link in the chat box. Please just help us out. It's going to take quick 2 minutes. Help us out, fill that feedback form, जो हमें help करेगा to improve the webinar experience of yours next time. What topics do you want us to speak on? Who do you want to call next? Or if you have any feedback on the webinar, how did you like the flow? Anything that you want to write, you can write in that feedback form. So, Atul, thank you so much for giving us your time for this webinar. It was amazing to have you on board. Kindly share the website link. So, guys, website link तो नहीं है. What I'm sharing is I'm sharing Atul's Instagram. He's more active on Instagram. आप उनको Instagram पे DM करोगे, वो instantly reply करेंगे, right, Atul? I am very much active. और आप लोग अपना इंस्टा हैंडल भी, आई विल बी स्टार्टिंग वेरी सून. आपके जो इंस्टा पेजेस हैं उनको रिव्यू करने का भी मेरा स्टार्ट होने वाला है. तो आप लोग फॉलो करो और मुझे अपने इंस्टा हैंडल्स भी शेयर करो, सो दैट आई विल बी रिव्यूइंग कि आप इंस्टा को कैसे यूज करो या क्या गलतियां कर रहे हो. आई विल बी रिव्यूइंग योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल आल्सो. Yeah. So guys, I've put in chat his Instagram link again at his email ID. You can follow him and you can just DM him if you want. If email ID doesn't work, आप वो भी कर सकते हो. He's very active on Instagram. I know I messaged him on Instagram itself. That's where I think we got in touch with too. And yeah, Atul. Yeah, sure, definitely. Yeah. So Atul, thank you so much for coming on this webinar today and helping us out, helping all of these restaurant owners out, answering all our questions. We learned a lot. And thank you guys. Thank you so much for joining. I'm just keeping the chat window open for like next 5 minutes. जिसको भी link या कुछ copy करना है वो कर सकते हैं, and then I'll close the meeting. Thank you so much, Atul. Okay, guys. Thank you, Rima. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.